जहाँ लाफ्टर हो वहाँ अबू मलिक का नाम जरूर होता है। म्यूजिक से लेके मस्ती तक सब में नंबर वन। लेट्स वेलकम वन एंड ओनली अबू मलिक। Hi, Hangama Studio. It's nice coming back on channel once again. It's been, I think, a couple of years since we did it. So Hangama Studio is doing well. I'm happy. थैंक यू, हाउ आर यू? I'm fine, rocking as usual. कैसी चल रही है लाइफ सर? ऑन प्रोफेशनल फ्रंट क्या 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 म्यूजिक हो रहा है क्या? A lot of work now because Garba is comes to Pankhida happens is once in a year. वो होता है 10 दिन के लिए in Indore in a big stadium, and there I take a lot of actors, singers, musicians, dancers. 100 आदमी का group होता है and it's a different. I think the biggest Garba festival in the world because it has 25,000 people and it doesn't depend on a single artist. It depends on a lot of creativity that I do, and the newspaper group supports me called Lokshwami Group and Sanja Lokshwami. And the Lokshwami Group, and we've been doing it for 25 years. This is the 25th year. So now many actors are going like Nusrat Bruta, Chitrangda Singh, Manushi Chillar, and Simran, and I think many other Ishar Deol, many actresses coming on the event. And we'll have a gala time. It's something worth watching. In fact, I should cover that event in Indore. It's a great event to cover. So that is what I'm preparing at the moment. तो मेरी आपसे बात ना 5 साल पहले हुई थी एंड उस वक्त जब मैंने आपको देखा था यू आर स्टिल द सेम, यू आर नॉट एजिंग। व्हाट इज द राज? मुझे बताओ राज क्या है? आप बिल्कुल यू नॉट एजिंग, रिवर्स एज हो रहे हैं आप। I'm not reverse aging, but definitely age comes into everybody. But I think there's a lot to do with the kind of a musical heart that you have, and you have songs in your heart. And then I think I'm a lot of I and Jackie Shah remain secluded most of the time. And I think if you don't go out too much and just do your work intensely in your studios and all, that process could be a little slower in my case. But I think I'm aging like anybody else is. Okay, you have a beautiful house. Thank you so much. फर्स्टली कैसे बिल्ड किया है पूरा, इंटीरियर से लेकर जब मतलब फाइनलाइज हुआ होगा पूरा वो आपका जो जर्नी है। Two floors, and it is that area where I and Jackie are is very worth watching because it's like a gufa and we keep it at 16-17 degrees because he requires that temperature. That's why you have this wearing this all the time. You have to wear these warm clothes, but I have to maintain it for him, and I think that is one of the reasons that you have to it's a very hot city, so you have to be in cool premises most of the time, do your work. So that's it. It's a nice place. I like it. यहाँ के इंटीरियर्स में आपका कितना हाथ है, कितना आपने इनपुट दिया है? I believe in basically your floorings and your ceilings make the major thing, and then after all the intricacies are done by my wife, but the color codes is mine, and then I believe a lot in electronics and other things which will come up and which I've kept everywhere else in the rooms, and I have to make this wall into a complete electronic wall where I have 100 screens and then different type of electronics. There's all the LEDs kind of coloring. I want all that. I'm a little fancy guy. हम जो देख रहे हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है, राइट? Yeah, it's more like you have to change it. Huh? It's been there for some time. As you grow a little older and all, this house starts aging. You have to make it young. एब्सोल्युटली। ओके, आपके घर के एक फर्द अमाल मलिक हैज एंटर्ड बिग बॉस हाउस, बिग बॉस 19 अभी महज एक हफ्ता ही हुआ है। डिड यू न्यू अबाउट इट? No. You know, Big Boss actually doesn't let anybody know who's coming into the house. वो क्या करते हैं? They make a spreadsheet of 50 people, and you keep on bouncing names. In our case also, we know, अरे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है. We don't know. So that nobody, even the people who go inside, who I call inmates, means जैसे prisoners होते हैं, because you're locked inside. So all the inmates also don't know that who's going to come. But I was informed on that day by Premnath ji's son, Monty Nath. Premnath is a very famous actor yesterday, but Premnath ji's son rang me up and told me, Abu, do you know Amal Malik is in doing? Oh, I said, that's wonderful. I felt he's right for it. He's got that thing inside him. He's got that craziness like what I am basically by nature. He can get angry. He's got a very nice way of analyzing things. He speaks a lot. He's very much into the people and हाजिर जवाबी बहुत है. तो ये सब चीज़ें उसकी क्वालिटीज़ है.
besides his music, which shows his basic love structure, love भरा हुआ हार्ट में, तो मतलब दिल पे एक आशिक भी है. तो I think we may get to see all these colors inside the house. ओके भले ही आपको उनकी एंट्री का नहीं पता था बट इन जनरल आई ऑल इन टच या कभी गेट टुगेदर्स में डू यू ऑल मीट और व्हाट इज इट? I have not met him for some time now, but normally we are in touch and meeting normally and doing. But once he got very busy with his work scene, he was involved in his work scene, and we left him alone because, yeah, I think his compositions. He's very serious when he's composing his music, and I didn't get to see him because I was in most of my time I spend in countries like Zurich and Switzerland, where offices are there of my entertainment, and we spend my time abroad. So basically a person who lives abroad. But I am always in touch to understand what he's doing, or not we can come to see the work that is. But I had no idea about this particular moment of his life. ओके अभी एक हफ्ता ही हुआ है लेकिन बहुत कुछ हो गया एक हफ्ते में. अंदर झगड़े भी हो गए और एक सीक्रेट रूम में जाके री एंट्री भी हो गई और दोस्तियाँ भी बन गई थोड़ी बहुत और दुश्मनी तो बनी गई है. साथ ही साथ अमाल के वन लाइनर्स बहुत फेमस हो रहे हैं. तो अमाल की शख्सियत का ये साइड के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने इतने करीब से उन्हें देखा है. जैसे मैंने कहा, हाजिर जवाबी है, एंड ही इज मेड. अंदर जो लोग हैं वो वैरी हैं अभी उससे. दे नो कि इससे पंगा ले लिया तो कुछ ना कुछ पीछे पड़ जाएगा ये, तो पंगा नहीं लेते. इफ यू नोटिस, आई हैव नोटिस दैट दे डोंट टेक पंगा विद हिम, दे शाय ऑफ हिम कि पंगा नहीं लेने से. एंड वो हाजिर जवाब इसलिए है क्योंकि ही सिट्स विद पोएट्स एंड व्हेन दे मेक सॉन्ग्स ऑन वेरियस सिचुएशंस तो वर्ड्स आ जाते हैं. देन डोंट फॉरगेट दैट आवर मामा was Hassar Jaipuri, the famous poet. So that also goes into the bloodstream of my mother's brother was Hassar Jaipuri. He's written over 27,000 songs. Baaron Phool Barsao se leke kya kya zindagi ek sab. So I think all the lyrics qualities, getting the words together, jamming with other poets, the memories are there in the mind. So he can easily join things together. He can make poetry out there also. So he is very good. All these things are good for him. And all this things will work out for him in Big Boss. जैसे आप चुप हो गए बिग बॉस में, आप समझो आपके दिन भर गए. यू कांट बी साइलेंट, यू हैव टू बी इन्वॉल्व. एक चीज मैंने देखी अभी तक कि लव स्टोरी अब तक किसी की शुरू नहीं हुई. नाउ मेरे हिसाब से तो किसी को अपनी, इफ एनी वन ऑफ दोस बॉयज हु आर अनमैरिड एंड हु आर कुंवारा एंड हु वांट अ ड्रास्टिक स्ट्रक्चर और go after somebody, even if it is an illicit thing, they want fun. Big Boss wants fun. Like there's a married couple, कोई लड़का पीछे आ जाए उन मैरिड लड़की के, और ये तू तो बहुत उसका हस्बैंड ही बैठा है, आप तो इतनी सुंदर है. Something of that, some berserk thing happens like that. So this kind of thing in madness has to be there. So that madness has to come. Somebody has to take the thing कि यार let's do it, जो होता होगा, जैसा होगा देखा जाएगा. But everybody knows it's a game. So when we went in, I was a little innocent at that time. I didn't understand the game as such. तो मैं गाने वाने गा रहा था, मस्ती कर रहा था, वैसे जाने और जाएंगे तो बाद चले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था. बट नाउ आई थिंक द पीपल अंडरस्टैंड कि दे हैव टू बी इन्वॉल्व्ड. एवरीबडी हैज टू आस्क अ क्वेश्चन कि अगर आप बोलो ये लाल है तो एक आदमी पूछेगा ये लाल क्यों है. अगर आपने जो हाँ लाल है तो आप हाँ करके चले जाए तो लाल रहते, सबने सोच लिया लाल, तो बिग बॉस तो नाराज हो जाएगा कि मैंने तो सेलेक्ट किया था. आप कन्फ्रंट करो एक दूसरे से लाइक दैट. हल तो नजर आ रहा है, मगर हल इट्स नॉट द वे आई वांट इट. आई वांट यू ऑल टू आर्ग्यू व्हाई दिस हल दिस. इट कुड बी एन एब्सर्ड स्टोरी, इट डजंट मैटर. सो दैट्स हाउ इट इज. तो खाने में कुनिका जी अच्छा कर रही है, सो कुनिका जी डूइंग द कैप्टन. Yeah, she's fighting it out as much as she can, and it looks good. And soon, I think the people will start understanding that something's going to happen from her side. She'll raise her objections. तो अच्छी है वो दूसरी लड़कियां भी अच्छी हैं. सो दे आर कंटेंट क्रिएटर्स. सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दे आर पॉपुलर. करोड़ों लोग फॉलो करते हैं. एंड ऑल्सो आवेश जो है वो इस्माइल दरबार जी के बेटे हैं, जो वो भी बिग बॉस में रह चुके हैं. पहले आ चुके हैं बिग बॉस में, सेकंड या थर्ड सीजन में. वाओ. ऑल्सो उनके जो भाई है आवेश के, जैद दरबार, इज मैरिड टू गौहर खान, द विनर ऑफ. Yeah, that I know. So I think he come out with something. अभी तक तो मैंने देखा नहीं. Now I'll observe him more carefully if he's around. But अभी तक दोनों नजर तो नहीं आए खास.
हाँ, दे आर क्वाइट। आप गौरव के बारे में कुछ बोल नजर रहे आते हैं, वो गौरव नजर आता है अभी, हाँ, अमाल आता है, देन बशीर आता है, फिर दैट अदर बॉय गुड बॉडी, अभिषेक आता है, फिर कोनिका जी आती हैं, दैट गर्ल तानिया, तानिया मित्तल कम्स, देन दैट कश्मीरी गर्ल व्हाट्स हर नेम, फरहाना कम्स, and who else comes in the line में फरहाना comes, दैट मॉडल ऑल्सो थोड़ा बहुत इधर उधर नजर आ रही है, बट बाकी तो नजर नहीं आ रहे, मतलब 8 नजर आ रहे हैं, 8 नहीं नजर आ रहे हैं, देयर आर 16 ऑफ टू देम, बकल अप। या सो वी हैव टू सी वेयर द स्टोरी फॉलोज, किसी को तो अपनी स्टोरी निकालनी पड़ेगी, अमाल की तो स्टोरी डाल रहे हो, तो आई थिंक दैट इज गुड। ओके, स्टोरी से मुझे याद आया, शुरुआती टाइम एपिसोड्स में अमाल और अशनूर की दोस्ती बहुत अच्छी दिखाई जा रही थी, तो लोगों ने बाहर फैंडम्स ने या व्यूअर्स ने शिप उनको साथ में शिप करना शुरू कर दिया कि दे बोथ लुक क्यूट टुगेदर, पर उनकी दोस्ती बहुत ही प्यारी है। तो अशनूर को लेकर क्या कहेंगे? अश्विन इज नाइस, शी इज आल्सो डूइंग वेल, हाँ शी इज आल्सो वेरी मच देयर, हाँ अच्छे लगते हैं, दे लुक गुड, उनका दोनों का, फिर मैंने उन दोनों को साथ में देखा ही नहीं स्क्रीन पे, मे बी फर्स्ट डे में मिस कर दिया, उसके बाद मैं जो फॉलोअप देखा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसमें दोनों साथ में कोई डायलॉग भी एक्सचेंज नहीं कर रहे भाई, दे नॉट बीन सीन टुगेदर एट ऑल, ही इज इन फैक्ट, ही जस्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं व्हाटएवर उनका जो आउटफिट होता है। आई थिंक अगर वो लव अफेयर है बाहर, तो आई थिंक ही स्टेइंग अवे फ्रॉम द लेडीज, हाँ मे बी है, आई थिंक लव अफेयर इज द बिगेस्ट डिटरेंट टू बिग बॉस, बिग बॉस में तो देना मैं पूछना चाहिए भाई, आपका कोई वहाँ है जो आपको रिस्ट्रेन कर रहा है, जो नहीं रिस्ट्रेन कर रहा उसको फेंकना चाहिए बिग बॉस करते हुए, यार पागलों की तरह कूदेगा जाके, इससे उससे इससे इश्क लड़ा है, उसको इश्क लड़ा रहा है, उसको बोल रहा है, इसको, फिर वो झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, दैट बी फन, एनीवे लेट अस सी व्हाट हैपेंस, आई थिंक दीस बॉयज टू बॉयज कैन से व्हाट दे वांट टू, पर अगर अमल ने कुछ बोला है और सलमान सर ने उसको लेके आ गए अंदर, तो उसको अंदर ही डाल देंगे, तो देखे क्या होता है। ओके, अमाल का जैसे अभी तक ना बहुत एक काम, एक फनी, एक सभ्य साइड है, क्या उनका कोई टेम्परामेंट है? गुस्सा अगर जब आएगा, ऐसा होता है ना कि शांत है तो ठीक है, लेकिन जब फूटेंगे तो फिर वो कयामत आएगी, तो ऐसा कोई टेम्परामेंट है अमाल का, या ऐसा कोई एंग्री साइड है? ऑफ कोर्स ही हैज एंग्री साइड, दैट इज व्हाई ही इज बिग बॉस, बिग बॉस से कहीं स्टडी किया होगा कि ही डजंट लिसन टू रीजन, जब उसको गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा आ जाता है किसी, आई थिंक इज मोर बिकॉज ऑफ हिज वर्क, समथिंग वर्क रिलेटेड, ही इज मोर इनटू, अदरवाइज ही इज अ फ्रेंडली पर्सन, a friendly person full of heart, he's full of heart, so people who are thinking from the heart usually do not use their minds too much at that time, so उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो he'll respond to it very brutally, so that's going to happen. क्योंकि अंदर ना उन्होंने किचन एरिया में एक जगह बात करते हुए एक रैप गाया खुद की ज़िंदगी को लेकर। इट वॉज वेरी इमोशनल एंड वेरी रिलेटेबल टू लॉट ऑफ पीपल, आई एम श्योर। उनका ये कहना था कि अब तक उन्होंने इतना काम किया, फिर भी उनको किसी और की वजह से मतलब लोग जानते हैं, तो उनके लिए ये मौका है कि लोग अमाल को जाने, तो कहीं ना कहीं उनकी मतलब लाइफ में ऐसा रहा है कि काम करने के बावजूद उनको वो रिकग्निशन या अप्रिसिएशन उनके खुद के मतलब टैलेंट पे नहीं मिला। World over, it has been a normal trait that the creation of the song, when it reaches the public in a voice of a singer, the proprietor of the song becomes the singer. वो बाकियों को भूल जाते हैं. Though Singapore, according to the Indian Constitution, is just an instrument used by the creator to present his song outside. He's an instrument, like a sitar or the guitar, but they are treated like, as if to say, they created this song and it's because of them the song is popular. But the same songs which are sung by other singers on the stage worldwide are equally enjoyable to the people. They don't understand कि उसने गाया था ना, but the credit goes, so when they are honored so much, the music director takes a sideline. I think that trait should end, and music director should be felicitated as much or much more than the singer. Well, what is a instrument compared to a brain which created that song? So I think that is it. Though the singer
on his side brings the beauty to the music of the composer. He brings the beauty through his vocals. But the composer is not satisfied to the fact that uska credit छीन लिया गया. This I've seen in other composers also. I've seen a lot of poverty among composers जिनके अमर है गाने but they had no money to eat. And that was happened to my father also, Sardar Malik. So I think there should be some law in place where if a singers perform or when they charge so much money for the song that they are portraying on the stage, a portion of that should be sent to the singer, to the music director's house directly. Okay, I did a concert for so much money and I sang 50 songs in that show. The 50 songs belong to 50 different composers. So let me give them, they are earning in crores. They can easily give 10,000 rupees per song or 15,000 rupees per song. Give it to the composer. 5-6 लाख में उनका क्या हो जाना है? एक सिंगर मैंने सुना है 1-1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 80 लाख रुपया, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़ मांगता है इंडिया में. You believe that? That is the kind of money is being charged today by singers. So it's good for people like us. हमारा लॉट का प्राइस बढ़ गया because of this. Because we can go and sing their songs and make some money. But I think there should be some law in place regarding वो. I think IPRS and all is doing its bit. पर वो आर्टिस्ट थोड़ी देता है. आप किसी का माल गा के पैसा बना रहे हो और उसको कुछ नहीं दे रहे. आप अपना बना लो ना, इतने काबिल हो तो आप अपने गाने बना लो. सो दैट्स व्हाट आई थिंक अमल मस्ट हैव मेंट कि क्रेडिट मुझे नहीं मिला. आपको इतना काम, आप इतने टैलेंटेड हो, आपके वो वोकल्स हैं, आप हर दिन एक गाना नया कंपोज करके डाल दो ना, कोई भी. लेट द व्हाई यू हैव टू डिपेंड ऑन अ कंपोजर टू डू इट. Why there are separate sect of composers and separate sect of singers? And the singer sings, he's so talented, he should only sing the songs that he has composed on the stage. So that लोगों को वैल्यू तो पता चले कि क्या है. अरे फिर वो चिल्लाएंगे नहीं आप वो गाना गाइए, आप वो गाना. एक गाने का सुपर हिट होने का रीजन इज नॉट ओनली द सिंगर and the composer and the writer, it is also the guy in the front who takes away all the credit. वो शाहरुख खान का गाना था, वो सलमान खान का गाना था, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है एक गर्म चाय की. नोबडी बोलेगा. बट अन्नू went and sang this song, so some credit came to him as a singer. You know, otherwise if not, nobody, some other guy would have taken the credit. I have heard one singer, Abhijit said that those Ganes songs have been super hit because I sang them. What illogical thing. It's because Salman Khan sang it ultimately there on the screen that it became so popular. So the hero definitely deserves the credit, but hero gets his credit for it. He doesn't depend on the song of the film for his film to be full super hit. रानो ने क्या झगड़ा किया कल, बशीर से लग गई थी पीछे उसके जान के. और I think she could be the female Asim in the house. Really? You think so? Would be possible. ये कश्मीरी है. Yeah, they both are from Kashmir. तो वहाँ के जो लोग थोड़े होते हैं, उनको if you hit them in the wrong side, they are the type of people who really go after you. तो उसको ऐसा लगा था कि ये मेरे साथ बदतमीजियां कर रहा है या कुछ कर रहा है, मेरे बारे में बुरा बोला है. तो बुरा बोले तो वो खुंदक जिसे कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, खुंदक पाल लेते हैं. वो खुंदक उसके दिमाग में वो खुंदक, when she is raging away on that guy, तो वो आगे चलेगा वो ड्रामा. तो हो सकता है if she takes that baton, then she is a lethal weapon out there. Like Armal तो इसकी तो आवाज से मुझे नफरत है. I heard him say that. इसकी आवाज से. But I think that is the person to be collaborative with. Somehow, you know, there should be एक एंगल तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि लव एंगल शुरू हो जाए. और आई थिंक मैं ही नहीं ढूंढ रहा. आई थिंक ऑल सब ढूंढे. यार कोई तो अपने घुटने पे जाके बोले कि यार मैं आपसे खूबसूरत liking you. बड़े लाइकिंग. सीधा लव के बाद लाइकिंग का टाइम कहाँ है. ऑडियंस सीधा जाके कोई भी जाए कि भाई मैं आपसे इश्क कर बैठा हूँ जैसे आप आई थी, और वो प्ले करे उस लड़की को. लड़की भी प्ले करे. लड़की शुड नो. फरहाना और बसीर का जो टैंजेंट पे शुरू हुआ है दुश्मनी पे, हो सकता है कि वो धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो. फरहाना विल नॉट गो फॉर, जो मैंने देखा, आई डिडंट फील that Farhana will go in for somebody who's as robust as she is.
I think such females go in for people who are softer males. Correct. If she's a arrogant type, she will look at somebody who will say, okay, okay, it doesn't matter. But she's not the type to say, okay, okay, he's going to hammer it out. वो दूसरा लड़का भी अच्छा है, वो भी अभिषेक वो भी डरता नहीं है, मतलब वो लगा हुआ है अपने में, तेरे की. एंड आई थिंक दिस सीजन इज गोइंग टू बी एन एक्टिव वन. जो मैंने जो देखा 3-4 दिन में काफी कुछ हो गया. हमारे टाइम में 3-4 दिन में इतना था. वक्त लेके खुल रहे थे, धीरे धीरे वक्त लेके दो बिग बॉस 13 वाज द फाइनेस्ट शो एवर, बट आई डोंट थिंक सो कितना कुछ. मैं निकला चौथे हफ्ते में, आफ्टर दैट आई रिकॉल हंगामा हो गया था. सलमान सिद्धार्थ का झगड़ा हुआ. हंगामा हो गया था. आई वाज स्टन्ड व्हेन आई केम. ओके, ये क्या हो गया यार, ये तो लड़ रहे हैं पागलों की तरह, फाइटिंग अवे. सो आई से दैट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन बिग बॉस. आई थिंक इट्स एंजॉयबल. आज नहीं आता ना, आई थिंक आज वीकेंड कब आता है? संडे को. विद सलमान. Sunday also it comes all the week, every day of the week. या Oh, I thought it comes 5 days a week. Okay. सलमान की जैसे बात हो रही है तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, उन्होंने स्टेज पर बोला था प्रीमियर एपिसोड पे कि अमाल का नाम जब उन्होंने सुना ही वॉज शॉक्ड एंड उन्होंने मेकर्स को बोला हो ही नहीं सकता, अमाल आएगा ही नहीं, वो मतलब यू विल नॉट एक्सेप्ट. तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट मेड हिम से यस, क्योंकि वो उनका जो इक्वेशन है लगा कि वो बचपन से जानते हैं या तो व्हाट कैसा इक्वेशन है विद सलमान? Amal has great respect for Salman Khan because Salman has introduced him into the line. And जो उनकी पिक्चर थी जय हो, वो उनकी थी, उनके प्रोडक्शन था. And plus he was the person who promoted him when he was beginning in his career. So he has utmost respect and he understands that Amal is not a person who can take a backseat anywhere. He has seen his front step, his arrogant style and things like that. So I think he must have felt कि अरे ये क्या, वहाँ तो कोई राजा ही नहीं है. वहाँ तो ऐसा होता है कि हर आदमी किसी को कुछ भी बोल देता है. सो हाउ विल ही गो देयर एंड एक्चुअली हैंडल दिस? तो इसका नहीं हो सकता ये. आई थिंक अमाल इज राइट एंड कैन हैंडल इट. वो जहाँ जाएगा वहाँ अपनी जगह बनाएगा. सो आई थिंक इज ओके. घर के अंदर सब पता नहीं कब प्यार की हवा चलेगी, लेकिन बाहरी दुनिया में अमल की ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही क्यूट सा मैसेज ऑन कैमरा दिया फॉर हिज स्पेशल समवन. तो क्या आप जानते हैं कौन है वो, और उनकी पर्सनल लाइफ, ये जो लव लाइफ है उसको लेकर? नेम अ गर्ल लाइक दिस ऑन एनी प्लेटफॉर्म वुड नॉट बी राइट ऑन माय पार्ट. एंड बट शी इज कमिंग इनटू द हाउस टुडे. प्रोमो में सलमान ने She's coming into the house today, so let them come, and once it is announced publicly, then we can know about it more. But I have personally not seen, because I would not like to go into anybody's personal lives. And as you say, I'm a little reclusive kind of guy. I'm not reclusive for my show people or my music band and my live audiences, but otherwise I'm reclusive. I'm also not reclusive for my people like you and the camera where I talk and express myself. But otherwise, I'm not a social man. I don't go out and meet people. आप क्या कर रहे हैं? I'm not interested. दुनिया क्या कर रही है? I'm not interested. I'm interested in what I'm doing. Or if I'm not doing anything, I'll be watching movies. So it's okay. So I don't know much about his personal life or any of the children's personal. Even my own son, I wouldn't know. So it's okay. I think आज announce हो जाएगा. Then we'll see who it is. उनका जो रिएक्शन था, तो फेस वो एकदम पूरे ब्लश कर रहे. हाँ, वो इससे शॉक हो गया था कि कौन है, कौन आने वाला है. लेट अस सी. क्योंकि घर में और भी है, जैसे आपने मेंशन किया फरहाना बसीर, लेकिन ज़ीशान है. ज़ीशान को सोशल मीडिया पर विलन कहा जा रहा है घर का. और अभिषेक है, गौरव खन्ना है. एक एपिसोड में इट वाज गौरव खन्ना. मुझे गौरव की बात आती है तो समझो, मैंने ना उसकी सीरियल देखी है ना उसके बारे में मैं कुछ जानता हूँ. ज़ीशान के बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि ज़ीशान ने एक ऐसी फिल्म लिखी है, गैंग्स ऑफ वसेपुर, जो आई एब्सोल्युटली एडोर. आई एडोर दैट फिल्म. जिसने भी गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी होगी, दे मस्ट रियलाइज दैट देयर इज सम इंटेंस ब्रेन पावर गोइंग इनटू द. और जिस तरह से उसने वो काम किया था, वो जो रोल किया था, व्हाट वाज हिज नेम इन द फिल्म? बट यूनिक सा नाम है. डायनामाइट एक था, सर्किट एक था, नहीं आई थिंक डायनामाइट. एक तो वो था वो जो ब्लेड से काटता है, उसका नाम क्या था पता नहीं.
उसके नहीं, इसका नाम कुछ और था, I can't get the name, but he played that role very very well, and he had wanted that I should play that role. और उसके कैरेक्टर में नेचुरली अगर उसने पीछे पूरी पिक्चर लिखी है तो उसके पास वो जबान होगी और उसके पास वो आइडियाज होंगे, एंड दैट विलेनी भी ऑल्सो बी देयर बिकॉज इट वाज फुल ऑफ विलन्स एंड ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. वो खुद होगा वहाँ का, वसीपुर का, बोलता है ना मैं उस एरिया का हूँ, तो ही विल बी द विलन ऑफ द हाउस, नो प्रॉब्लम. वो लगा रहेगा एक ना एक के पीछे, कुछ ना कुछ तो करेगा वो भी. इट लुक्स लाइक. वो यंग कपल जो है उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता. आवेज एंड नगमा, दैट आई डो नॉट नो मच अबाउट. वो क्या करते थे? सोशल कंटेंट क्रिएटर्स है, इन्फ्लुएंसर्स, एंड इस्माइल दरबार जी के बेटे हैं आवेज. He depends on the film to be super hit. He works very hard on the film. So you can't take the story of the hero here. But the singer, as a singer should, if 50, 25, 30 गाने एक शो में होते हैं या 40 गाने होते हैं, कितने कंपोजर, 5 कंपोजर होंगे, 6 कंपोजर होंगे, आपने 1 करोड़ रुपया लिया है, 20 लाख बांट दीजिए इनसे कंपोजर्स में, क्या बड़ी बात है. But I don't know what's happening to the money. I think they're storing the money for God knows how many generations. Anyway, no, I have no grief on this. I'm okay with whatever Amal says is okay, but I hope he gets credit and he does his music and his voice comes out also. तो एक तरफ जहाँ अमल को के वन लाइनर्स, विटी, उनका पर्सनालिटी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट अमल का एंड उनको सोशल मीडिया पर बहुत बैकलैश मिला है. वो ये है कि जहाँ उन्होंने कहा कि आवेज़ और नगमा उनसे कुछ पंगा लेने की, बेसिकली कुछ झगड़ा करने की ऐसा कुछ कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज उन्होंने जो कोट किया वो ये था कि अमल से उनको बिजनेस मिलता है, ये सॉन्ग प्रमोट कर जो होता है वो इन्फ्लुएंसर्स सॉन्ग प्रमोट करते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि 20 लाख रुपए दिए जाते हैं. तो उस पर जो है आवेज़ के और नगमा के घर वालों ने बहुत आक्रोश दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि अमाल वो पैसे दे रहे हैं, वो तो लेबल इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देता है टू प्रमोट देयर सॉन्ग, जब उनको लगता है कि ये सॉन्ग इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो जस्ट टू गिव इट अ पुश वो इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं. तो ये एक स्टेटमेंट उनका थोड़ा सा उसकी वजह से उनको बैकलैश मिल रहा है ऑन सोशल मीडिया. अबू मलिक, आपका क्या इस पर रिएक्शन? Influencers are being paid money to talk about somebody's music and things like that. प्रमोट द to make a reel on it. That is their job, no? So if that's their job, they should get paid for it. तो I don't think there's anything wrong in it कि अगर उनको 20 लाख, मैं तो कहता करोड़ रुपया मिल जाए, 50 करोड़ मिल उनको जाए. थोड़ा सा बैकलैश अमाल को मिल रहा है. कि he said that they are nobodies because they take money from. उन्होंने ये कहा कि मुझसे उनको बिजनेस मिलता है, तो वो मुझसे यहाँ पर खराब नहीं करेंगे. Oh, that is the way. I don't know why he said that, and he must be feeling that. You see, everybody जो अंदर पहले घर में आता है ना, is a boss in his own level. कोई भी रास्ते से तो उठ के आया नहीं है, सब अपनी अपनी जगह से अपने आप को की. पर जब आप घर में आते हो ना, घर के अंदर, फिर आप रियलाइज करते हो कि आप किंग नहीं हो, बिग बॉस किंग है. बिग बॉस आपको एक झटके में बाहर निकाल सकता है. बिग बॉस आपको बता सकता है किस तरह से बात करना. बिग बॉस आपको कंट्रोल कर सकता है. और धीरे धीरे यू स्टार्ट फियरिंग बिग बॉस. यू एक्चुअली स्टार्ट फियरिंग. वो फ्राइडे जब आता है ना, तो लोग पड़ जाते हैं कि अब साला ये क्या क्या रिवील करेंगे हमारे बारे में, क्योंकि सबकी बातें वो सुनते हैं, सबको एक दूसरे को बता देते हैं कि आपको पता है इसने आपके बारे में ये बात की. तो वो घर में डिवीजन होना शुरू हो जाता है, एनिमीज क्रिएटेड हो जाते हैं. तो ये सब एनिमिटी के ट्रेट्स हैं कि जब अगर गुस्से भी हो रहे हैं और लोग बाहर बातें भी कर रहे हैं, और ये सब पार्ट ऑफ द झगड़ा इन द बिग बॉस. चलने दो. आई थिंक यू शुड बी हैप्पी दैट कंट्रोवर्सीज आर बीइंग क्रिएटेड. या ओके, फैमिली वीक भी होगा, अभी नहीं, बहुत टाइम है, लेकिन आपको देखा जा सकता है फैमिली वीक में, या आपको क्या लगता है, मतलब भाई अरमान होंगे, पापा होंगे, क्या लगता है? He will definitely call his brother and his father and his mother. I think they are all on their right of popularity, very famous. So I think this depends on Big Boss. उनको बुलाता है सबको, and they will get them on. I think I won't be there. That is for sure. ओके, उनके जो पिता है आपके भाई डब्बू जी एंड अनु जी, क्या उनसे आपकी इस रिगार्डिंग बात हुई कि हमारा बच्चा अमाल इज इनसाइड द हाउस, कैसे खेल रहा है? क्या मेरी दोनों से बात नहीं हुई रिगार्डिंग दिस. मेरी दोनों से बात नहीं हुई. अन्नू से मेरी बात हुई कल बिकॉज ऑफ समथिंग, और किसी ने मुझे अन्नू का इस बारे में सवाल पूछा, तो मैंने बताया कि मेरे को कुछ भी होता है तो मेरा फोन तो अन्नू को जाता है. मैं कुछ भी करता हूँ तो आई रिकम अन्नू, अन्नू दिस
this is happening. Then I tell him, and he's immediately guarded on the kya. He's rung me up because he has something that he wants to tell. So my call goes to him. तो but somehow we have not discussed this. इस बारे में बात हुई नहीं. ना उससे बात हुई, ना इससे बात हुई. और हमने डिस्कस ही नहीं किया. मे बी इन द कमिंग कॉल्स आई टॉक टू हिम. अभी तो 5-6 दिन ही हुए ना. अब सब अपने कामों में मसरूफ है. अन्नू को तो 1 मिनट नहीं मिलता. ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल. Okay, let's talk about Big Boss 13, the ultimate season. I think बहुत से सीजन आए, बहुत से गए, लेकिन उस जैसा वापस कभी नहीं आया. क्या लगता है कि आप तो रहे हैं, पूरा 1 महीना बिताया आपने, ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या खासियत थी उस सीजन में कि कितने भी बड़े बड़े नाम उसके बाद आए भी अंदर, लेकिन फिर भी वो ऑरा या वो एक कनेक्ट नहीं कर पाए. Something just falls in place. The thing fell in place. Everybody was unique. You talk about Siddharth, you talk about Shehnaz, Asim, myself, then Aarti, then Rashmi, then Shefali Bagga. There was just so many of us. Siddharth Day. That whole thing started gelling. Devyani, the name was one of them. She was a famous girl. She was Devlina. Then all of us felt. Then that Paras, all Mahira, then that big विशाल came in. तो बढ़ते गया तो चेंजेस उन्होंने किए ना, वो चेंजेस इतने अच्छे, वो जो स्टोरी फॉर्म हो गई ना, वो लव अफेयर की और सब. टू सम इट अप, दैट आई रिमेंबर दैट सिद्धार्थ यूज्ड टू रिंग मी अप आफ्टर ही केम आउट. अच्छा, अब वो गाने गा दे, तो जितने भी गाए, मैंने क्यों गाने गाऊं, तो गाने गाऊं तो ऐसा लगा कि मैं वहां बैठा हूँ. तो मैं गाता, कल रात मैंने सपना देखा था तो किसी और की बाहों में सो रही है, मैं चीखा चिल्लाया. अच्छा, और दूसरा गाना गा उधर. फिर वो गाना गा, तुम बैठी रहो मेरे सामने और उम्र गुजर जाए. तो ये सब गाने हम लोग गाते थे इनसाइड द हाउस. तो वो बोलता जब भी तू रास्ते पे जाएगी एक्सीडेंट करवाएगी, एक्सीडेंट बेबी यू आर डार्लिंग, एक्सीडेंट बेबी. तो सिद्धार्थ में से गाने गवाता था, पता है. ऑल द टाइम यूज्ड टू शूट. अबू गाना गा दे, अबू गाना दे दे. एंड ही वाज गोइंग टू प्रमोट दिस सॉन्ग्स, and he was going to make that thing for me before if some new songs is coming. He told me, Abu, मैं कपड़े ऊपर पहन के करता हूँ. And 2 days later, he was not there. And I was also hospitalized because some vaccine had reacted with me, and I had gone to the hospital. And there I saw some people came and told me, अभी 2 दिन बाद उसकी बरसी है, on 2nd of September. So right now I'm in the hospital in that particular year, and I'm watching him on the screen. I was stunned. I tried to contact everybody. I couldn't. But 10 days later, when I came out, the car came. Shena sent me the car. And in that car, I went to Siddharth's house. And there, it was a different atmosphere. हम सब बैठे हुए थे. And they were only talking about me. क्या हुआ था देखो, कैसा हो गया था, क्या कर लिया, ये वो. And they were just putting that topic aside and they were trying to behave. Okay, and I'm expressing my pain, and you can imagine what they must be going, their pain. And they were just behaving like, no problem, Abu, you sit down. And मैं गया था 15-20 मिनट के लिए. I sat 6-7, we sat together 5-6 hours. Auntie, the Siddharth's mother, sisters, Shehnaz, myself, just sat and talked. क्या करें? Something that is unbelievable that happens. Same with Shefali. Yeah. And what can you say when something like this happens, You have no word. You feel that a youngster just passes away for no rhyme or reason. या तो कोई बीमारी होती सिद्धार्थ को, या कोई बीमारी होती शेफाली को, या कोई रीज़न होता. They just went away, man. And they were both belonging to Big Boss 13. And it was the most loved show in the world. And it becomes more like this because we have lost some very beautiful members of the show. I don't know. But the story went, everything in that show was beautiful. And it'll remain like this. It's be etched in the people's. In fact, उसकी जो story line निकाल के इतने characters लेके उसकी तो फिल्म भी बनानी चाहिए. हाँ? उसकी एक short form की फिल्म बना देनी चाहिए. With that clip, I still think there will be viewers for that.
people will come and watch. In touch with Asim, Shehnaz, आरती, बात हो पाती है, मिल पाते हैं? No, me, Shehnaz, Aarti, we're all like together on the phones. Like we are all the time together, all of us. मतलब ये देखो साथ में लगे हुए हैं. ओह लवली. All no. All of us लगे हुए रात के 2 बजे टाइम 2 बजे 3 बजे. इट इज वेरी रेयर एक्चुअली, इतने साल बाद भी टच में रहे. फ्रेंड्स हम लोग बातें करते रहते हैं. इस टाइम तो 2 दिन पहले बात हुई तो वी वर ट्राइंग टू we just remembered that next one, so they cut the topic. They said let it go Abu, let it go. So I said okay, let it go, doesn't matter. So they on 2 तारीख को I'll go and talk to the mother and just say a few words, though I don't think they would like it or not, but we'll definitely offer our condolences even now that we remember him a lot. In fact, millions of people remember him. शहनाज की बात हो रही है तो शहनाज के भाई है शहबाज, उनके और एक यूट्यूबर है मृदुल तिवारी, उनके बीच में वोटिंग की गई थी मेकर्स के द्वारा, एंड बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट एंटर द हाउस एंड वोट्स में मृदुल बाजी मार गए. तो आपको लगता है अगर वो होते तो और थोड़ा एंटरटेनमेंट का तड़का होता घर में? Yeah, he was good. He was fine. उनके वीडियो में से बना के लेके गए थे. I made a video for him. शहनाज रंग में आपके make a video and they want to show it so that we support him. So I made a video for him and but some of that उस लड़के की backing बहुत थी scenes, बहुत backing थी लड़के की. तो that's why he got in. And शहबाज was not. पर शहबाज होता तो कुछ और पंगे करता वो, क्योंकि वो जानता था सबको, तो उसके पंगे तो थोड़े डिफरेंट होते हैं. तो I felt that he was a good person for the house. अब ये तो चुप बैठा है. So far he's not done anything. He has a good friendship with Natalia, वो जो सलमान ने काफी प्रेस किया है कि दोनों का बॉन्ड Love anger नजर थोड़ा बॉन्ड. हाँ वो कहता है यार कितने बिल्कुल अलग हूँ मैं इससे. आई हर्ड हिम सेइंग दैट मैं तो बिल्कुल अलग हूँ इससे, मगर यार कितने अट्रैक्ट है. तो हो सकता है कि वहां से कुछ स्टोरी हो जाए शुरू. कोई तो स्टोरी शुरू होनी चाहिए. somebody is thinking about it like we are thinking about it right now. तो ये शायद ये एंगल शुरू हो जाए. ओके, अभी तो खैर एक हफ्ता ही हुआ है, बहुत जल्दी है गुमान लगाना, अंदाजे लगाना, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5 में किसे देखते हैं? कौन आपके हिसाब से स्ट्रांग है और कौन अभी? ये तो नजर आता है when the people walk in. जब मुझे याद है वो जो लड़की और लड़का था वो तेजस्विनी प्रकाश, वो वॉक्ड इन, आई सेड ये लड़की होगी टॉप 3. कौन जीता था उस सीजन? तो आई पॉइंटेड आउट फर्स्ट डे. Walked in, I said, this girl will do it. This girl will win. First day, you can make out when people walk in. तो इस टाइम मुझे नजर आता है गौरव, अमाल, then बशीर, then तानिया, then अपनी फरहाना, ये 5-6 लोग तो हैं फोर फ्रंट में. विनिंग मटेरियल कौन लगता? I would lay a little time on this. A little time on this to understand how the game is going. I'd say कि another week and we'll know who's going to take the lead. वो स्टैमिना भी चाहिए ना all throughout चलने के लिए. You're talking about how many weeks actually? More than 3-4 months. 12 weeks होता है ना. 12 हमारे टाइम पे तो 25 weeks हो गया था ना, कुछ ऐसा हो गया था. आई थिंक एक्सटेंड करते गए थे. तो आई थिंक 1 हफ्ता तो 2 और विद इन 1 वीक आई थिंक ऑल ऑफ अस. मगर 5-6 नाम तो आएंगे, उनमें से होगा पहले 3. हमारा ट्रॉफी ले जा सकता है लगता है? ले जा सकता है, क्यों नहीं लेके जा सकता. हर यंग आदमी जो पावरफुल है उस घर के अंदर वो लेके जाएगा, मगर ही हैज टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव. एक एग्रेशन का लेवल पार करना पड़ता है एक लेवल को, लाइक सिद्धार्थ डिड. You go to a level where nobody can reach. I don't know बाकियों के ट्रॉफी कितने एग्रेशन में आए थे एग्रेशन में. एल्विश और इन लोग के ट्रॉफी they were that much only. They were very aggressive. Even एल्विश के सीजन में OTT में तो इट वाज लाइक कि जब वो एंटर हुए उसके बाद
things suddenly changed and people started watching और बहुत कुछ टास्क मज़ेदार उन्होंने एक बोलते ना एक फन एंगल एक एंटरटेनमेंट एलिमेंट घर में लेके आया तो इट वाज व्हाट अच्छा, वो सीजन में बिल्कुल नहीं देखा था. आई डोंट नो एनीथिंग. आई रिपेंट नॉट वाचिंग दोस सीजंस. आई शुड हैव. आई मस्ट हैव बीन बिजी अदरवाइज. बट नाउ आई मेक इट अ पॉइंट दैट वन स्क्रीन ऑफ माइन हैज गॉट बिग बॉस. अभी मैं पॉइंट करते एक आईपैड है जो उस पर ऑन करके रख देता हूँ मैं 10 बजे 10:30 बजे. So that I don't miss it. So that's going on the screen. But and I think millions of people are watching this show. I think this is a good show. It'll work. ओके लास्टली अमाल ने कुछ ही हाल ही में एक पोस्ट किया था रिगार्डिंग हिज इक्वेशन विद हिज ब्रदर अरमान एंड घर के कुछ हालात को लेकर उन्होंने एक काइंड ऑफ सेपरेशन अनाउंस की थी कि कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में. तो वो फर्स्टली वो पोस्ट जब आपने देखा मतलब हाउ डिड यू रिएक्ट क्या आपके आपका क्या रिएक्शन था आपकी क्या सोच है इस चीज़ को लेकर. Many people asked me to talk about it. I did not talk about it. And I still refrain from. I think that was an internal family matter between the family. And किसी मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरा भाई है देखने का, उसकी फैमिली. We work on nuclear units. Though we will ring up the elders and talk to them in case we have a problem. But we work as nuclear units. So I felt that problem has to be addressed by the family itself. So I didn't talk about it only. I still don't talk about it. I think at the spur of a moment, a youngster can say anything. My son can tell me anything. But that doesn't mean anything. आप भी बोलते हो घर पे किसी भी बोलो I don't care for you and things like that. But that doesn't mean anything. आप घर वालों पे चिल्ला दो short tempered if they're trying to prevent you from doing something. And you say, why I want to go there and I want to do this and all. But that doesn't spoil your relationship with anyone. You don't cut off your family members for anything. You ultimately are together by blood. You don't choose your relatives and your family. You're born with them. And no matter what you say or what anybody says, you have to be with them. You have to look into them the way they are. And that's it. If somebody doesn't like me, the best you can do is stay away. But that's all. You're still connected. So there is nothing wrong there. I think they are fine. खा रहे पी रहे मजे कर रहे हैं और हम कहानियां बना रहे फालतू में. Nothing in it. Bullshit. Okay, to all Amal fans and to all the ardent loyal followers of Big Boss and Big Boss 13 के चाहने वालों को what message you would want to say lastly? I would say keep on watching Big Boss. Keep on watching Hangama so that you get the latest of all the gossip. And Big Boss is a very entertaining show. It makes you feel कुछ दिनों में आप सब घुस जाएंगे अंदर ही. सबके अपने अपने कैरेक्टर्स होंगे and we'll enjoy ourselves. Keep on watching, keep on enjoying. Thank you for joining us. Thank you. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.